बड़ी भयंकर भयंकर किस्म की लड़ाई थी, सर। क्योंकि उससे पहले इंडियन ग्रेनेडियर्स इस फीचर को 3 बार अटैक कर चुकी थी यस और सर। हेवीएस्ट कैजुअल्टीज उन्होंने सफर की। हमने तन मन जीवन तुझसे ही पाए हैं, तेरी धरती से। Hello friends, today is a wonderful day and we are here for a very special session. We are here today for something which is close to every Indian's heart. Today we will celebrate life and times of a young man, Captain Vijayanth Thapar Veer Chakra. We will discuss his life, his journey with his parents. He is a role model for the entire country. I think Indian youth cannot have a better role model than Captain Vijayanth Thapar, who at the young age of 23 years sacrificed his life for the country. So very soon I'll be joined with his parents, Colonel Thapar, and his mother, Mrs. Tripta Thapar. We will speak to them and discuss about the amazing journey of their son, Vijayanth Thapar from True Rajputana Rifles, who sacrificed his life in the Battle of Tololeng, the most fierce battle, the battle that broke the back of the Pakistani army, the Northern Light Infantry, in the Kargil operations. This was the first major victory for India. After that, we were on the high, and victory after victory. By end of the 26th July this month, we had captured back our entire territory. So very soon we will be joined by the parents, and I will just invite them. But amazing journey for this young man. I will tell you about his life and times, and you just you just have to hear it out. What a man. And many of you, आपको लगेगा कि यार ये मेरी स्टोरी है, आपको लगेगा कि ये मेरी स्टोरी है, हम सबके जिंदगी की स्टोरी है. So Captain Vijayanth Thapar, who sacrificed his life in the line of duty, leading an attack. Very few फौजी, बहुत कम फौजियों को मौका मिलता है अपनी जिंदगी में कि हम देश के लिए एक्चुअल अटैक करते हुए जो है वीरगति को प्राप्त हो. और विजयंत थापर ने देश को भी गौरवान्वित किया, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, सबको. सो आई विल जस्ट इनवाइट वेरी हैंडसम यंग मैन, वेरी फिट. यही मैं कहता हूँ ना, उसकी बेयरिंग देखो तुम, लुक एट हिज बेयरिंग. उसकी पिक्चर्स है कई शोइंग मसल्स कॉलेज के अंदर. He was in all possible activities. He was there. What a pleasure to see you, sir. Both of us are not fitting into the frame. Hello, ma'am. Hi. Ma'am. Good evening. Good evening. आपसे connected हैं इतने दिनों से. What a pleasure to see you. Welcome, sir, on this special session. We have hundreds of young people. It is totally our pleasure. What a pleasure to see you and ma'am, sir, together. And ma'am, अगर थोड़ा सा आप सर के साइड में आ जाए तो so that both of you can come on the same page. Yeah, this is wonderful. This is wonderful. Somebody can take a picture. Thank you for doing this to us. Sir, we are on talking of Vijayan. I have told them when he was born, when he was commissioned, उसका नाम विजयन टैंक के ऊपर आपने रखा सर. You always wanted a young man, and उसकी बचपन की कुछ बातें बताएं मैम, आप या सर. आप बताइए. बचपन की तो उनकी बातें जो है वो बहुत सुहावनी और बहुत लुभावनी है, क्योंकि एक बात है कि ये उन बच्चों में से था जो बहुत छोटी उम्र में, मेरे ख्याल से 5th या 6th क्लास में था. तो मैं पैरा बटालियन एक मेरा दोस्त कमांड कर रहा था. तो वहां पे फिर मेरिट में दे वर गोइंग टू श्रीलंका. तो उन्होंने खाने को बुलाया और वापसी में हम वाया फायरिंग रेंजेस वापस आए. तो जब हम
फायरिंग रेंजेस पे फायरिंग हो रही थी, मैंने भी पिस्टल उठा के फायर करना शुरू किया, थोड़ा 5-6 राउंड। तो ये मेरी तरफ देख रहा था, छोटा बच्चा था। तो मैंने कहा भाई तुम भी करोगे क्या? तो कहता हाँ मैं भी करूंगा। फिर मैंने उस गोदे में बिठाया और उसे 5 राउंड फायर किए। ओके, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है एक बच्चे के लिए। आई हैड टू कैच हिज हैंड, अपने हाथ में कप करके फिर दबाया। तो इस तरह से वो बचपन में ही थोड़ा सा सर्विसेज की तरफ, फौज की तरफ वो हो गया समझो। हाँ। मैम आप बताओ, मैम आप कैमरे में आओ, आप बताइए मैम। उसकी वो बहुत शरारती था, आपको तो बहुत तंग किया होगा उसने जब छोटा था मैम। एक्चुअली वो बिल्कुल जैसे आम बच्चा होता है, जैसे आपके बेटे या हमारे बेटे, आई मीन फौजी दे ऑल, ये सारे जो अपना आर्मी एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, तो वहां पे जो है ना वो एक तरह सा माहौल जो है बिल्कुल फर्क होता है, बिल्कुल। एंड यू विल सी के सारे बच्चे जो है एक जैसी, उनकी थिंकिंग एक जैसी है, उनका रहना सहना सब कुछ एक जैसा था। सो लेकिन एक मैंने चीज उसमें देखी थी कि before I speak about Robin Vijayan Thapar, first I would like to salute those 529 brave hearts, Absolutely. 529 officers and soldiers who gave their supreme sacrifice in Kargil war. And मैं उनको नमन करती हूँ सबसे पहले। And now, of course, now I'll speak about my son. छोटा था तो एक तो मतलब फौज में जैसे आपने देखा होगा कि फौजियों को कोई चैलेंज आप दे दो तो वो सेपरेट, वो हार नहीं मानते। तो व्हेन ही वाज इन 7th स्टैंडर्ड, तो कर्नल थापा ने ऑफ कोर्स ही वाज ए स्विमर राइट फ्रॉम द डे वन, उनको स्विमिंग का थोड़ा करवाया भी था। एंड एज यू नो फौज में सब जगह जो है वो स्विमिंग पूल तो बिल्कुल होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो कर्नल थापा ने एक बार उसको बोला कि भाई तुम ये अगर तुम, दैट टाइम ही वाज इन 7th स्टैंडर्ड, वी वर एट पठानकोट। तो कर्नल थापा ने उसको कहा कि क्या है तुम स्विमिंग करता है, मैं देखूंगा अगर तुम 50 लैप्स कर जाओ स्विमिंग पूल की। ही सेड प्लीज यस डोंट चैलेंज मी। सो ही सेड अरे चलो ना करो तो सही तुम। एंड यू वोंट बिलीव he did 50 lengths, and when he was going for the next 51st length, then Colonel Thapar stopped him and he said, yes, I agree, and I should not have done that, because वो उसकी आंखों में क्लोरीन भी इतनी चली गई थी, but he said, yes, I'll keep the promise, and what you have told me, I have done it. So he was one of those children के अगर आप उसको कुछ बोलोगे तो करेगा जरूर वो। इसका मतलब मैम द डिटर्मिनेशन एंड द नेवर से डाई एटीट्यूड वो जीन्स में था उसके। दैट एटीट्यूड यू नो, कमिटमेंट, एंड बोल दिया तो बोल दिया, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ही वेंट टू राजपूताना राइफल्स। Yes. और एक चीज थी, I can define my son in just one sentence. He was very loving, very affectionate, and very honest also. And discipline, as we all know, like people talk about, अरे आपके तो कर्नल थापर तो बहुत strict थे। I said no, it is not the strictness. It is the discipline, how you maintain, because you have to teach your children. टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे खेलना, टाइम पे पढ़ना, स्कूल जाना करके। So that is called discipline. And of course, above all, he was a true patriot. Like the other day, I saw you speaking on patriotism and nationalism. So he was a true patriot. क्योंकि वो ऐसा था कि he could do anything for his country, and as you said, they can give their life for the country also, and that's what Vijayan did. उसकी मैम पिक्चर्स देखो ना बचपन से, वो छोटी पिक्चर है उसकी, फिर एक पिक्चर है कोर्ट में उस स्कूल की, और एकेडमी की जो उसकी पिक्चर्स हैं, कॉलेज, मतलब उसकी पिक्चर्स भी अगर आप लेआउट करोगे तो लग रहा है कि किस टाइप का बच्चा था। मतलब ही वाज स्पेशल, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक यू नो स्पेशल पीपल गो वेरी अर्ली, यू नो उनको भी भगवान भी जल्दी बुला लेते हैं। एंड देश के लिए जाना, टैग में जाना, और एक प्लेटून लीडर की तरह कितने लोगों को मौका मिलता है। सोचते सब हैं बट बहुत कम लोगों का ये सपना पूरा होता है मैम। तो धन्य आप दोनों, आप खासतौर पे मदर हैं उसकी, आपने उसको मतलब पाला है ऐसे बच्चे को। तो आई कैन फील मैम, आज भी मैं भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसकी बातें करके, आप लोगों को देख के। इट इज स्पेशल मैम। ऑल आई लाइक टू से, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, एक सैनिक जो है, जो अंत में राइफल हाथ में, दुश्मन सामने, और
उस समय वो गिरता है जंग के मैदान में, और वो भी अपने साथी के हाथों में गिरता है, तो इससे अच्छी कोई इस पृथ्वी से जाने का रास्ता नहीं है। क्योंकि आखिर में यही चीजें जो है वो बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स में वो कहते हैं कि कर्नल थापर, वी फील चीटेड, वी नेवर गॉट अ चांस लाइक व्हाट वी जस्ट गॉट, नाउ जस्ट इमेजिन। सर मैं बोल रहा हूँ, हम सबकी यही तमन्ना रही है सर कि कुछ ऐसा काम करें कि तिरंगे में घर पे आए, और कुछ मतलब इस टाइप से देश के लिए, तभी तो वर्दी पहनी है ये जज्बा, ये मतलब। और जब यंग होते थे, मैं पुंछ में था 1987 टू 1990, इतनी फायरिंग होती थी, हम कहते यार कोई ऐसा हो, कोई अटैक असॉल्ट, ये क्यों नहीं हो रहा है 71 टाइप, हम भी पाकिस्तान की कोई पोस्ट कैप्चर करें। तो ये जो तोरोलिंग के अटैक से पहले का माहौल था ना सर, उसमें ये लोग इतने बेचैन हो रहे थे, और सबसे ज्यादा बेचैन बेचैन हो रहा था ये सोच सोच के कि देखो हम बैठे यहाँ पे हथियार सफाई कर रहे हैं, ग्रेनेड साफ कर रहे हैं, शॉर्ट रेंज पे जाते हैं, पहाड़ चढ़ के नीचे आ जाते हैं, और जस्ट 5 किलोमीटर अवे fierce battles are taking place. तो वो जो इट वाज काइंड ऑफ गेटिंग ऑन देयर नर्व्स कि हम को पीछे क्यों रखा गया। I know, but sir, what a unit! To Rajrev, under great CEO sir, कल रविंद्रनाथ, I knew him. अपने बैच में सर उनका बहुत ही जबरदस्त रेपुटेशन थी उनके बैच में, ऑफ कोर्स 1980। सो ये लीडरशिप का सर बहुत जबरदस्त रोल है जिसका सीईओ ऐसा हो, और टू लूज 4 ऑफिसर्स वेरी फ्यू टाइम्स। आपने भी सर, आप तो वेटरन है, have you ever heard in any other operation a unit has lost 4 officers, sir? Yeah, the only operation I can recall is Colonel Haig's attack across the Chugil Canal. That was the time they lost 65, they lost 4 officers, yeah. Yes, sir. Yes, sir. And sir, take us through. All I want to say is, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, victory is always there as a result of collective valor, collective effort, collective teamwork, and a good leader on top. If those circumstances are created, victory is at your feet. बहुत बड़ी बात है सर, लीडरशिप एंड कलेक्टिव, एवरीबॉडी, सबके। मैंने पिक्चर्स देखी है सर, जो टू राजे वाले हवन करके और माथे पे तिलक लगा के, भाई तोलोलिंग, आप तो इतनी बार गए हो, मैं भी बहुत बार वहां गया हूँ। जब चलने शुरू हुए लड़ाई के लिए, आई थिंक हर एक के मन में बहुत जबरदस्त जज्बा था कि जो है ना, ये पहाड़ी जीत के रहेंगे देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अब आपके पता नहीं आप ये देख सकते हैं नहीं, इसके ऊपर ये की किताब है जो लिखी गई है, और इसमें जो चीजें आप मैं से पूछ रहे हो ना, एक एक का आपको वहीं पे जवाब मिल जाता है कि वो किस तरह का आदमी था, क्यों उसने ऐसे किया, क्या उसके दिल में चल रहा था उस वक्त। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वांट टू टेल, बथेरे आपके फॉलोअर्स सुन रहे होंगे कि थोड़ा सा ईश्वर में और भगवान में फेथ रखना एक सैनिक के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब चिप्स आर डाउन, जब आप प्लान के मुताबिक चीजें नहीं चल रही, तब सिर्फ एक ही चीज है जो आपको ताकत देती है, और वो है आपका फेथ। और इस यूनिट में कर्नल माता के लिए इतना फेथ है, ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं, टोटल एंड एवरीथिंग। यस, नहीं वो यूनिट की लाइफ ऐसी है सर, मतलब मैं तो गार्ड्स में हूँ, बट मैं गढ़वाल में भी नौकरी करी, वहां बद्री विशाल, जय बद्री विशाल के बिना काम नहीं शुरू करते सर ऑपरेशंस में। आई थिंक द कलेक्टिव फेथ, इट बाइंड्स अस टुगेदर। यस यस सर, टेक अस थ्रू ऑन हिज व्हेन ही वाज पोस्ट, जब उसने आपको लास्ट लेटर लिखा, एंड हाउ एग्जैक्टली द इवेंट्स हैपेंड सर अराउंड 28th of June, सर उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। Okay, then in one capsule only I'll tell you that they were involved in counterinsurgency in Kupara. Sir. And they were in the nastiest place. So in between those operations, they were, उनको ऑर्डर मिल गए कि टोरलिंग और द्रास में बहुत इंटेंस ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं,
और इनको मूव करना है। तो ये 29 मई को वहां से निकल गए और सबसे पहले इन्होंने टोरोलिंग का अटैक किया। तो टोरोलिंग पे अटैक जो था वो 12 और 13 की रात को हुआ था। हाँ सर। जो कि 12 और 13 की रात को, और बड़ी भयंकर किस्म की लड़ाई थी सर। क्योंकि उससे पहले 18 ग्रेनेडियर्स इस फीचर को 3 बार अटैक कर चुकी थी। यस और सर। हेवीएस्ट कैजुअल्टीज उन्होंने सफर की। And I must give full marks to them because वो 14 दिन तक वो जो बर्फीली स्लोप्स थी वहां पर पड़े रहे दुश्मन को फिक्स करके। और उसके बाद में टू राजरफ गई और टू राजरफ का मोराल इतना हाई था उस समय पर कि उनको कोई और चीज नहीं चाहिए थी, उनको सिर्फ टोरोलिंग चाहिए। यस सर। जैसे कि रविंद्रनाथ ने कहा पूरी पलटन को कि जो कुछ तुम्हें चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया, आप मुझे वो दो वो मुझे चाहिए और मुझे चाहिए टोरली। उन्होंने कहा साहब मिलेगा। एंड देन दे वेंट अप। I mean, the spirited attack that they put in, I think some divine forces were pulling them up, and then they went in. There was a brilliant success, though they lost Gupta, Vivek Gupta. Vivek Gupta, yes. Yeah, Vivek Gupta. He was a very heroic and very nice action. Sir. But Vivek, they Shiv had made a plan by staggering को उन्होंने जो HR थे दोनों कंपनियों के आधा घंटा आगे पीछे कर दिए थे। हाँ सर। ताकि दुश्मन को लगे कि जो अटैक है वो सक्सेना की कंपनी main thrust is coming from the west, sir, and not from Vivek Gupta's side, but actually it was the other way around. So जब ये उनको लगा कि वेस्टर्न साइड से मेन अटैक आ रहा साउथ वेस्ट की तरफ से, तो उन्होंने अपने ट्रूप्स जो थे वो उधर से शिफ्ट कर दिए और सक्सेना could not break through because that had been reinforced. And then Alpha Company, which was the reserve, with Major Acharya, yes, sir, about whom you yes, Padmapani Acharya, yeah, Padmapani Acharya, yes, they went in. Yes, sir. And unfortunately, they were naturally attacked. पहाड़ों में हमला मैदानों की तरह नहीं होता, एक के पीछे एक सब लोग जाते हैं। तो विजयन की प्लेटून सबसे आगे थी और उन्होंने बाद बंकर नामक जो पोस्ट थी पाकिस्तानियों की, जो पहले हमले को डिवाइड कर चुकी थी, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया और उसको फतेह कर लिया। उस अटैक में कई पाकिस्तानी मारे गए थे और जो वो तो डिटेल में आप पूछेंगे तो बता देंगे। सुबह जो था विजय और उसके कंपनी कमांडर मेजर आचार्य दोनों एक वो प्रभात बंकर पर बैठे हुए हैं और अपने पांव हैं वो उनको हवा लगा रहे हैं क्योंकि इस पसीने से पूरा गंदे हो गए थे। तो बैठे हुए हैं और इस तरह, और उनके पांव के नीचे ये पड़े हुए थे हथियार और आजू बाजू में कई पाकिस्तानी मरे हुए पड़े थे। तो ये सीन था वहां पे ऊपर। उसके बाद ये लोग नीचे आ गए। नीचे आके अब रिलैक्स करने का सोच ही रहे थे जब 24 तारीख को अटैक हो गया नॉल, क्रेप इम्पल्स एंड रोन हिल पर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जरिए से जो भी सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई की सबसे फियर्स जो बैटल था, कारगिल वॉर का जो सबसे फियर्स बैटल था, वो यहाँ पे हुआ था। हाँ सर। लेकिन ये रोड हेड से 14 किलोमीटर अंदर था। हाँ सर। 12 किलोमीटर करीब अंदर था। इसलिए कोई मीडिया के जाने का या किसी और के जाने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। और ये जो लड़ाई है ये यूं कह लीजिए कि उस हमले की दौड़ धूप और अंधेरे में कहीं दब गए, पूरी तरह से नहीं आई। लेकिन जब आप
ये किताब में इसका वर्णन पढ़ेंगे इस लड़ाई का, तब आपको खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं। 3 ऑफिसर तो दे वर किल्ड, शहीद हो गए। हाँ सर। 3 ऑफिसर जख्मी हुए थे। यस सर। ठीक है, और 60-62 आदमी जख्मी हुए थे, 10 आदमी मरे थे। तो ये बड़ा हैवी कैजुअलिटी है। वर्ल्ड के इतिहास में कभी भी जो ऑफिसर और जवानों की डेथ की रेशो है इतनी हाई कभी नहीं हुई। सबसे हाईएस्ट 2 राजस्थान ग्रुप में 1:2। एग्जैक्टली, मैं इसी पे आने वाला था। 1:2 बिल्कुल, 1:2। हाँ बिल्कुल सर। मतलब ये कंपनी कमांडर्स विवेक गुप्ता, आचार्य एंड दीज 2 यंगस्टर्स रॉबिन विजयन एंड कैंगरूस, यू नो, ही क्लाइंब विदाउट जनरल शूज बिकॉज ग्रिप नहीं बन रहा था उसका, है ना, एंड ही वाज एन एसी ऑफिसर अटैचमेंट, यू नो। तो मतलब ये है, ये क्योंकि बहुत से यंग बच्चे देख रहे हैं उनके लिए कि देखो आप कितना जज्बा है, कितनी मतलब फायर है ना, एक की फतेह करने के लिए, अपने जवानों को लीड करने के लिए ऑपरेशन में। ये इस और ये किताब वी विल शेयर द लिंक in the bio and we put it on YouTube and all, and this book must be read by every young man. आपकी ना टेबल पे होनी चाहिए किताब to read about this young hero। मैं कहता हूँ असली हीरो ये है देश के आजादी के बाद, he is one of them। So sir will now move to, मुझे वो बताओ सर, जब आपको खबर लगी कि इसको चोट लगी है, how did you come to know, और उससे लेके when you finally received you know Vijayant home, how was that sir? कैसे आपने हैंडल किया, कैसे आपको पता लगा सर? About that, I'll tell you first कि रॉबिन का जब of course you have seen के सारे all young officers they led the attacks in Kargil। So विजयंत ने जब उनको पता चला कि 28 इवनिंग में उन्होंने अटैक किया था 28 जून को, तो उससे पहले उनका फ्रेंड है कैप्टन तोमर। So तोमर को कहा कि बस अब आज तो अटैक स्टार्ट हो रहा है। So I'm just writing this letter, which of course became last letter। So इधर तो चिट्ठी लिख रहा हूँ, अगर तू वापस आ गए तब तो फाड़ देंगे, और नहीं तो फिर ये लेटर जो है ये तुम जाके मेरे पेरेंट्स को दे देना नोएडा में। So last letter, of course, everyone knows what is written in his last letter। Yes। So उसने जो है वो लास्ट लेटर लिखने के बाद फिर उसने एक जो खाना भेजते थे, जो खाना नीचे से ऊपर जाता था, तो 1-2 दिन से खाना नहीं ऊपर आ रहा था, तो उन्होंने उसको खाना लाने वाले को भी कहा और कुक से को भी कहा कि अरे भाई आज अटैक के लिए जा रहे हैं तो आज तो तुम कुछ खाना क्या बना है, तो उन्होंने कहा कि खाना तो बना है आलू मटर पूरी की पूरी बनी है। तो कहते आप अपना ये खाना तो भेज दो प्लीज, क्योंकि पता नहीं आपके हाथ का बना खाना कल किस किस को नसीब होगा। तो फाइनली जो है वो खाना नसीब नहीं हुआ उनको। तो आफ्टर दैट ऑफ कोर्स नाउ थापर विल टेल यू। हाँ सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर आप कैमरे में आ जाओ सेंटर में सर, थोड़ा सा। हाँ नाउ यस यस सर। हाँ सर। तो जो आपको कैसे खबर लगी सर? वो इन्फॉर्म यू, कैसे खबर लगी आपको सर? अच्छा ठीक है, ये खबर मैं अलवर में था कोर्ट पार्षण ड्यूटी पर, तो मुझे वहां पे एजी ब्रांच का टेलीफोन आया। अच्छा सर। जैसे एजी ब्रांच का टेलीफोन आया तो उस दिन मेरा दिल वैसे ही बहुत भारी था, पता नहीं क्या वजह थी। आमतौर पे पूजा करता था तो 2 अगरबत्तियां लगाता था, उस दिन पता नहीं क्या मैंने 4 अगरबत्तियां लगाई। अच्छा सर। एंड वेरी अनकंफर्टेबल, कुछ ऐसे हैरानी सी थी मेरे अंदर। तो जैसे वो घंटी बजी तो मेरी ये दिल में एक फीलिंग हुई कि ये टेलीफोन कॉल ठीक जगह से नहीं है, मतलब। अच्छा। और वही बात हुई कि उन्होंने कहा कि सर आई एम सो एंड सो स्पीकिंग फ्रॉम एजी's branch and I just want to inform you that your son Captain Vijayant Thapar fought very bravely but was killed last night. We salute him. So it
well, they got the doctor and they checked my blood pressure and everything, Sir. pulse and all. Then they put me into a vehicle and they sent me to Noida. Okay, sir. In the meantime, the call had been given to our house also. Okay, मैम तो आप ये And मैम आप नोएडा में थे मैम? आप नोएडा में थे या सर के साथ थे अलवर में? मैं नोएडा में थी and you know I've been a teacher throughout, so I was in school. So my younger son was there at home. So उसको पहले एक फोन आया कि ये विजयन थापर का घर है, तो उसने कहा यस। तो कहते ओके आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने कहा मैं विजयन थापर का ब्रदर बोल रहा हूँ। कहते ऑलराइट, और फिर वो फोन बंद हो गया। सेकेंड टाइम फिर वो कॉल दोबारा आई कि अच्छा हमने आपको कुछ बताना है तो आपको बता दें। तो उसने कहा यस प्लीज बताइए मुझे क्या बात है। तो फिर उधर से अगेन आर्मी हेडक्वार्टर से फिर ऑफिसर ने बोला कि आर यू रेडी टू हियर समथिंग? So he said, yes, please, you tell me. I mean, he was in 12th standard that time. And he never expected से कुछ आ जाएगा। तो कहता है, yes, please, you tell me what's there. तो कहते हैं कि your brother, Captain Vijayan Thapar, has laid down his life in Kargil war. Can you believe it? That's, I mean, he was 16, 17 years old and he could not control himself. And then immediately he called up. और मेरे स्कूल में उसने कॉल करके बोला कि मेरी मदर को बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि शी इज अटेंडिंग ए इंडक्शन प्रोग्राम। ही सेड जो भी है आप उनको एकदम बुलाइए। एंड दिस इज हाउ देन ही टोल्ड मी दैट मामा रॉबिन हैज गॉन। I know it can be very heartbreaking, man. मतलब आप नोएडा में हो, वो लड़ाई लड़ रहा द्रास में, सर अलवर में कैंपेन ड्यूटी में, सर वाज स्टिल सर्विंग, है ना तब। और yes, more important is what happened after that. Yes sir, वो बताएं सर हमें सर। I mean, it is unbelievable how the whole town gathered here. 1.5 lakh people were there. That's what I want to say. Yes. That is the time पूरा नोएडा सड़कों पे था। और ये कारगिल वॉर पहला टेलीवाइज वॉर था which came to our drawing room sir। इसीलिए देश के नौजवानों को बहुत जानने की वो इच्छा है। Exactly. That's what I would tell to all the youth. That kind of respect you can only get. Only the people who lay down their lives bravely for the country, they alone are entitled to this kind of a respect. The people didn't know about it. They didn't know Vijayan. Who's Vijayan? They didn't know. But they wanted to see that man who displayed these qualities and who laid down his life for the country. They wanted to see that man. And it was a scene which cannot be forgotten. I know, I've seen it. I saw it on TV. I saw you and the way you conducted yourself, sir. Actually, आप भी एक रोल मॉडल हो सर हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए। आप और मैम जिस डिग्निटी के साथ और जिस साहस के साथ सर आपने फेस किया है अपने यंग बच्चे को एवरी टाइम। मैंने आपको असंख्य बार सुना है आपको मैम। एंड फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ यू नो you have been a role model sir to the nation. मैं देखिए, मैं ये बिल्कुल बताना चाहता हूं कि हमारा बेटा हमारे साथ है। वो कभी यहाँ से नहीं गया, हमारे दिल से कभी नहीं गया। सुबह से शाम तक हमारे साथ है। और जब हम नहीं रहेंगे, मुझे 100% यकीन है कि वो देशवासियों के दिल में अपनी जगह बनाएगा और वो रहेगा इस देश में रहेगा। बिल्कुल। उसके नाम पे स्कूल खुलेंगे आगे। मैं चाहता हूँ कोई यूनिवर्सिटी खुलेगा उसके नाम पे। उसकी बुक आ गई है, उसके नाम पे एनक्लेव है, एक रोड है। अभी बच्चे जब आप आ रहे थे लाइव, कितने बच्चे लिख रहे थे कि हम गूज बम्स देते हैं हमें विजयन थापर की बात करके। विजयन थापर मार्ग से जब निकलते हैं या उसके चौक से निकलते हैं, उसके एनक्लेव को, उसको गेट को देखते हैं, तो ही इज अ रोल मॉडल सर। एंड फॉर यू इट्स अ वेरी प्राउड थिंग कि आपके घर पैदा हुआ बच्चा। यहाँ पे मैं एक और छोटी सी थॉट इंडक्ट करना चाहता हूँ सर कि ये एक परंपरा है, सैनिक परंपरा है। हाँ सर। ठीक है,
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। अब आपको बताया कि विजयंत का नाम आर्मड ब्रिगेड में टैंक से पड़ा था। हाँ सर। और उसी जहां पे मैं था वहीं पे पूरा हॉर्स थी। अच्छा। और उसमें हमारा बहुत बड़ा जो हीरो है, यंग हीरो, अरुण खेत्रपाल। यस, 1971। हाँ सर, परमवीर चक्र। He was his absolute role model idol. मतलब ये गर्मियों के दिनों में अपने छोटे भाई को खींच के ले जाता था। अरुण खेत्रपाल के घर के बाहर खड़ा होके दीवार से दिखाएगा कि ये है उसका घर। And he got so much pleasure out of it. Now, what, 30-40 years later, more people come like that only. They are standing outside the boundary of our house, trying to peep in, trying to get in. While I have told everybody, all your people who are listening, that the doors of our house are always open. Anyone who wants to come can just walk in. Very nice, sir. Can just walk in. With little Corona discipline, is most welcome. Have a sit down sometime with us. And that's how, from one generation, from Arun Khetrapal, it came to Vijay. And from Vijay, it will go to somebody. It will continue. It will continue. The other day, she got a call from God-forsaken place, right in East Ladakh, beyond Galwan. Sir. One Captain Rangara. Sir. And he said, what was his name? Rahul. Captain Rahul. And he says, sir, madam, I just want to tell you, it was Vijayant who has inspired me to join the army and be here. And I'm hoping to get a chance like he got. So that's the kind of inspiration that is passed out from one life to the next life for the sake of this country of ours. Look, a lot of armies in the world are based on religion. Yes, sir. Pakistani army is totally religion. Yes, sir. And more. A lot of armies are based on political ideology. Yes, sir. So, but we have no such thing. What have we got? We've got nation, the pride in our nation, the Rashtriyata. That is the main Bharatvarsh. That is the one that drives us to do this time. And I want to touch one side of Robin when I speak about him. Just come to the camera. Yes, yes, ma'am. Now you're perfect. When his battalion was in Kupwara, there you see he was after finishing his duty and all in the evening. Their battalion was based in a school. स्कूल के में थी उनकी बटालियन। तो स्कूल की छोटी सी हट बनी हुई थी, झोपड़ी, तो जिसमें से एक छोटी सी 3 साल की बच्ची वो वहां हमेशा खड़ी होती थी। तो रॉबिन ने देखा कि ये बच्चा, आई मीन जनरली जब आप वेव करो बच्चे को तो वो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन वो छोटी सी बेटी वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। देन ही फाउंड आउट कि भाई ये बच्चा बोलता नहीं है, कुछ नहीं करता है, कोई रिएक्ट भी नहीं करती है। तो उसके फिर साथ वालों ने बताया, उधर रिश्तेदारों ने, कि इसकी जो है, इसके फादर को जो है, he was slaughtered in front of her, and जब से वो, तब से इसकी आवाज भी चली गई है, and she has withdrawn herself. You know, इस चीज से, and her name was रुखसाना, इस चीज से विजयंत को, हाँ जी, विजयंत को इतना धक्का लगा अंदर से, and you won't believe, 1 महीना उनकी बटालियन उधर थी, मार्च, and by the end of April में they moved to Myanmar and all, May, and within 2 months रॉबिन ने रुखसाना को की इतनी केयर की, इतना प्यार दिया कि by the time he left for Kargil war, रुखसाना started speaking. I know, उसने चिट्ठी में लिखा है रुखसाना के लिए कपड़े सिलना, है ना, he's written, मेरे लिए जबरदस्त प्यार है। यही मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ कि हमारे ना कभी मन में किसी के प्रति घृणा हो नहीं सकती धर्म के नाम पे। और ये बच्चे कश्मीर के बच्चे हैं, देखो उसका दिल कैसे, छोटी सी बच्ची, और उसने आपको चिट्ठी में लिखी कि रुखसाना के लिए कुछ मैसेज करना, है ना। और रुखसाना को 50 रुपए हर महीने आप भेजते हैं। He has written in his last letter कि रुखसाना को
₹50 हर महीने देने हैं उसकी पढ़ाई के लिए. So as you know, Colonel Thapar goes to Kargil every year, Yes, and ma'am. on the way he comes to Kupwara. And now, of course, she's like a daughter only, and whatever she needs, we are supporting her. Very nice, ma'am. So has she come stayed with you in Noida? कभी आपके घर आई है मैम रुखसाना नोएडा में? एक बार टीवी में IBN7 ने इंटरव्यू किया और बुलाया उन्होंने कि हम कारगिल वालों को बुला रहे हैं. तो जब वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, मेरा और कर्नल थापर का, तो उन्होंने कहा आपका कभी दिल नहीं करता कि आप रुखसाना को मिले? तो हमने कहा दिल तो बहुत करता है, लेकिन कैसे कुपवाड़ा उसके अंदर जाए. कहते आपसे कोई मिलने आया है. कैन यू बिलीव इट? वो रुखसाना को वहां से लेकर आए थे, एंड वी कुड सी रुखसाना इन फ्रंट ऑफ अस. A great surprise. She was there, and we were so happy to see her. And thereafter, of course, and God bless her. And whatever Robin has written in his letter, we are just following that. Great, ma'am. Great. Really. Mother, एक story, and when people read the book, it'll be much more in detail, all these events about his life, his pictures. Absolutely emotional, ma'am. Talking about your son. And so many people are watching it live, and we will put it on YouTube, other media, and more young people will get inspired from his life. Sir, anything you want to say, Thapar sir, to the young generation who want to join the army, sir, उनके लिए क्योंकि वो बच्चे में से बहुत जुड़े हैं. What should they inculcate? कैसे leadership qualities, personality कैसे develop करें? सर आप बताएं सर. देखिए, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या बताऊंगा, क्योंकि आजकल तो बड़े प्रोफेशनल बैठे हुए हैं. But all that I want to say is that you must have a dream. If you have a dream, like Robin had, like Vijay had a dream from day one, that he wants to join the service. Where I took him to this Tata Finance. There, one of my colleagues, after retirement, he was a big shot. So I told him, can you fix him somewhere? He said, yes, bring him. I took him there. One would think that in a corporate officer of the HDFC Bank, one would be enamored absolutely. In fact, it was a lovely office. Cubicle made everything super. So after he had visited, I called him and asked him, well, what do you want to say? He said, I will die, but I will not join this. So I will. The other thing was merchant navy, then what do you call this, hotel management. He simply refused. He just wanted to go. So therefore, I want to tell everybody who's listening to you, the young people, firstly, they should have no fallacy. This profession is not meant for the ordinary. Yes. It is meant for those people who are looking for something in life. You see, it offers you all the adventure, it offers you all the challenges, it offers you great promotion avenues and good pay. I mean, let not anybody be having a false understanding that the pay is limited and that kind of thing. No. My younger son was in the top corporate job. And I think it is regret that he did not join the forces, because you get all the facilities, you can play golf, you can swim, you can do horse riding, you can do adventure, people climb up the mountains, they go river rafting. So there is a full life to lead in the armed forces, a full life to lead. And that, unfortunately, you cannot do outside. So there is a small dictum which everybody should know. Fauj hai, तो मौज है. और उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है when you are in school and college to develop your personality, physical fitness. After all, it's a competitive exam. लाखों लोग अपीयर होने वाले हैं और उनमें से 150-200 जो भी है सिलेक्ट होंगे फाइनली. इसलिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी. There are no shortcuts. There are never any shortcuts to hard work. So ये मेरा सबको, और मेरा एक है छोटा सा सुझाव सबके लिए सर, कि आप देखिए,
हमारे नेबर्स हैं या कुछ और जान पहचान वाले हैं, अगर उनका बेटा या बेटी बड़े प्राइड से कहते हैं वो यूएसए में गया, वो इंग्लैंड चला गया, वो फलानी जगह चला गया। कोई आपने अमेरिकन देखा है जो अपने बेटे के बारे में भारतवर्ष में गया है रहने के लिए? Why can't we make this country so great? Yes, sir. That people aspire to come here. We are a 4,000-year-old civilization. What have we brought ourselves to? Yes. So I will be very proud, very, very proud that we find great honor, and other people also feel very honored to be in India, to be a citizen of this country. We have nothing lacking. I am very sorry to say. Absolutely, sir. Yes, sir. हर चीज हमारे देश में सर, इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं है सर दुनिया में, और इतने अच्छे लोग हैं, इतनी सब कुछ है। हाँ सर। सभ्यता कितनी पुरानी है? 4,000 साल की पुरानी है। अब उसमें क्या है कि मैं सिर्फ सारे बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि ये किताब है, दिख रही है? हाँ सर। ये किताब है, ये शायद आपके पास भी होगी, आप भी दिखा सकते हैं। मेरी ये किताब इस लिखने की सारी वजह एक ही थी कि विजयन की जिंदगी जो है वो यंग पीपल को, नौजवानों को और नौजवान लड़कियों को इंस्पायर करे, और मोटिवेट करे ताकि वो देश के लिए कुछ करे। जवाब ये देना है हर एक हिंदुस्तानी ने कि मैंने जो भारतवर्ष लिया था हमारी जनरेशन से, मैंने क्या किया उसको और भी बेहतर जगह बनाने के लिए। What is your contribution towards the country? So that's all that we aspire for, that this life of our son can inspire the youth of India. It will. And one more thing I want to say, हाँ जी, कि आज अगर आप सोचें, आज के जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चे फौज में जाए। देयर आर सो मेनी एवेन्यूज ओपन, कोई किसी में जाता है, कोई किसी में जाता है, बिकॉज पूरे यंगस्टर तो फौज में नहीं जा सकते। सो मैं ये कहती हूँ कि जो भी आप करो, वट एवर यू आर डूइंग, लेट इट बी एनी फील्ड, जिस फील्ड में भी आप हो, उस फील्ड में भी आप बड़ी ऑनेस्टली काम कीजिए। एंड ऑलवेज थिंक, इस मिट्टी, आप पहले इस देश के बारे में सोचिए कि इस देश में मैं इस देश में पैदा हुआ, मैं इस देश की मिट्टी में जो अनाज पैदा होता है वो मैं खाता हूँ। ये देश, मेरे भारत में जो नदियां बहती हैं उनका मैं पानी पीता हूँ, और इस देश की खुली हवा में मैं घूमता हूँ। तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है? मुझे अपने देश के लिए, लाइक कर्नल थापर सेड, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू माय कंट्री। I just want to say one thing, कि आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, and always keep India first. Don't say anything, don't do anything against your country. That's what I want to convey. Great message, great. आप तो ना बिल्कुल वो बात बोल रहे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यही बोलता रहता हूँ नौजवानों को। Exactly. आप दोनों से बात करके ना मैं आज मतलब it's been one of the most pleasing experiences, man. आप दोनों को लाइव बात करके, और इतने आपके विचार, इतनी मोटिवेशन, इतनी इंस्पिरेशन है। So we'll end this session, sir. One last message you want to give to the youth of the country, sir? Anything आप दोनों, anything, one message you want to give? Nothing. I mean, whatever we have to say, we have said. Please do whatever you can. आप सिर्फ उतना करिए कि जिससे कि जो कुछ भारतवर्ष में अब है उससे बेहतर भारतवर्ष बने, उससे हम लोग अपने साथ, अपने आप में संतुष्ट हों कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया। आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपने से बाद जो आ रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। बाद में आपके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो भी आएंगे किसी दिन, और उनको ये, और मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का जो सीमेंट और लोहा है वो है शहीद, जिन्होंने जान दी। उनके खून से ही ये बिल्डिंग, इमारत बनती है, मजबूत बनती है। और हर एक को उनका रिस्पेक्ट करना, हर एक को उनका दिल से रिस्पेक्ट करना, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्विटर पे जाके
एक वो लाइक नॉट लाइक करना काफी नहीं है। आपको उनको दिल से इज्जत होनी चाहिए, और उन्होंने आपके लिए जान दी है। आपने जवाब सिर्फ ये देना है कि क्या आप उस काबिल थे कि वो आपके लिए अपनी जान देते। अगर उसका हाँ जवाब है, वेरी गुड, एक्सेलेंट सर, वेरी गुड। मैं तो लोगों को बोलता हूँ सर, ये जो मेमोरियल्स हैं, वॉर मेमोरियल्स हैं, दे आर द ट्रू टेम्पल्स ऑफ इंडिया। मैं कहीं और जाओ ना जाओ, कहीं पे जो वॉर मेमोरियल जरूर विजिट करो, बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जाके स्पेंड टाइम, रीड नेम्स देयर। आपको आपकी तरह के हजारों लाखों बच्चों के वहां नाम लिख के मिलेंगे, एंड इट विल इंस्पायर यू। वेरी गुड थॉट सर। मैम, आप लास्ट वर्ड विच यू वांट टू से समथिंग, यू नो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप शहीदों को याद रखेंगे, तब तक इस देश पे कोई नजर नहीं इस देश की तरफ कर सकता है। और जिस दिन आप शहीदों को भूल जाएंगे, वो आई थिंक वो बहुत खराब दिन होगा, वो नहीं होना चाहिए। वो हो नहीं सकता इस देश में बच्चा मैं देखो इतनी कारगिल की बातें करते हैं। अभी भी देखो 22 साल हुए हैं, कितनी किताबें आ गई हैं, हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। 2 साल पहले मैं जियोसीता ले में हमने 20 इयर्स मनाया, पूरे देश में मनाया, पूरा देश, कॉलेजेस में, स्कूलों में बहुत इवेंट्स हमने करी। बाइसिकल रैली, मोटरसाइकिल रैली, टॉर्च को लेके गए, दिल्ली से द्रास लेके आए, और तो इस टाइप की इवेंट होती रहती है। तो मैं खुद 26 तारीख को कमला नेहरू कॉलेज को एड्रेस कर रहा हूँ कारगिल के ऊपर। हमें भी अब मैं जा रहा हूँ अभी कारगिल दोबारा, हर साल की तरह मैं जाता हूँ वहां पे। अच्छा, ये क्योंकि आप अभी इसको रैप अप कर रहे हैं, मेरे एक निवेदन है सब बच्चों से कि देखिए, आप आपस में वैलेंटाइन डे की गिफ्ट देते हैं और हैप्पी बर्थडे की गिफ्ट देते हैं, कोई भी, तो वो गिफ्ट में आप फूल ले जाते हैं 400-500 रुपए के, आप लोग और कोई चीजें देते हैं। मेरी आपसे निवेदन है कि आप ये किताब को अच्छी तरह गिफ्ट रैप करके, बल्कि गिफ्ट रैप भी मत करके, कचरा होगा, सिर्फ ये किताब को प्रेजेंट करिए अपने। मैं यही बोलने वाला था सर, एंड वी विल पुट दिस लिंक फॉर द बुक, so that more and more people are enthused by story of your son, and this book is there on their table. Schools, colleges across India, they should buy and read this and give this book to the people they love, whether their parents, their friends, or anyone. That is the best gift, man. And I've seen the conversations also. You're really motivating children. I've seen you're really motivating them, and thank you so much for that. Thank you, man. So much. Thank you, man. Very personal social responsibility, man. I take it on myself, man. And we will remain connected. We will remain in By the way, for the audience, there is a beautiful website of Vijayan called www.captainvijayanthapa.com. Yes. That is as good as the book, and you please. We will put that link also, sir. So thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Jai Hind. What a proud moment for all of us. And a great day. Thank you. Great. Thank you, sir. Stay healthy. Stay healthy. Our good wishes are both of you should stay for many, many more years and keep inspiring us. And by the way, Vijayan at Kargil Hindi edition will be out next month. Definitely, sir. I'll be there for the launch of that book, sir. Yeah, yes. We want you there. I'll put it on my YouTube. I will have another session on the book once again. Yeah. So great, man. Thank you, sir, for sparing your time and sharing these thoughts with you. What a wonderful day. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind. It was a pleasure. Thank you, sir. Thank you, man. Jai Hind.